Hello all, welcome back. So this is an important article talking about the importance of South Asia, and this is written by a very prominent geopolitical writer, Suhasini Haidar. And this article is talking about how this region has been altogether ignored, and the reason for this ignorance is their own differences. And we are losing on many fronts, be it climate, be it terrorism, or resource deprivation. And the most challenges in the world can be addressed only when there is a regional cooperation. So this will be a detailed discussion of this article. I will read into it. it is an all it is an ill wind that blows throughout neighborhood. एक खराब हवा चल रही है neighborhood में. A recent World Bank study on air pollution concludes that about 2 million people die prematurely in South Asia each year, as particular measures concentration puts 9 South Asian cities among the world top 10 worst affected by air pollution. ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जो बता रहे हैं कि 2 मिलियन पीपल यानी 20 लाख लोग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसमें वर्ल्ड के 10 वर्स्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में मतलब सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 बिलोंग्स टू साउथ एशिया. This ill effect of this pollution, regardless of where it originates, are clouding even the region's once pristine tourist destination. वो बोल रही हैं ऑथर बोल रहे हैं कि इसको ये मैटर नहीं है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, पर कंसर्न ये है कि वो इनगल्फ कर रहा है, वो स्मोक जो है वो इनगल्फ कर रहा है इन रीजन्स को जो एक टाइम पे एंशियंटली प्रिस्टाइन मतलब एंशियंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे. One surprising study in Bhutan found that average PM 2.5 concentration from 2018 to 2020 was 3 times World Health Organization prescribed limit. भूटान की एक स्टडी बताती है जो PM 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 साल में वो 3 टाइम्स ज़्यादा थी जो WHO की प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे. लास्ट वीक द मालदीव्स मेट्रोपॉलिटिकल Service warned that visibility has reduced by 60% due to smog. It has blamed on wind from Himalayan foothills. अभी क्या हुआ लास्ट वीक में मालदीव्स के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है क्योंकि स्मॉग आ रही है. कहाँ से? हिमालयन फुटहिल से. अब यही है कि रीजन्स एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि इसके वजह से ऐसा हो रहा है. ओके. Not only that, it is clear from the success stories in other parts of the world, including countries of Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, European Alpine Nation and China, that the solution to the problem of air pollution lies in a whole of region approach. ऑथर बोल रही हैं कि ये अक्रॉस द वर्ल्ड का एग्जाम्पल है कि बीट आसियान, बीट यूरोप, बीट चाइना कि जो ये इस पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो एक होल ऑफ रीजन अप्रोच से आएगा. किसी एक कंट्री के कुछ कर देने से नहीं होगा. ये सारी कंट्रीज़ का कलेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए इसके अगेंस्ट. एंड इट इज़ नॉट दैट एनी वन कंट्री इन द एयर शेड कैन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन. कोई एक कंट्री जो एयर शेड में है मतलब जो बची हुई है इस चीज़ से वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है. The report ends by asking India, Pakistan, Bangladesh, and all other South Asian countries to begin the talk between the scientists, officials, and eventually ministers and leaders to create a mechanism for cooperative management of 6 airshed the region is made up of. तो ऑथर बोल रहे हैं कि भाई जो रिपोर्ट भूटान की है वो अर्ज करती है इन बड़ी कंट्रीज़ को इस रीजन में कि वो अपने जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके बीच में टॉक शुरू करें सो दैट देर इज़ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द 6 एयर शेड्स द रीजन इज़ मेड अप ऑफ. जो 6 एयर शेड्स हैं उनकी मतलब जो जिस चीज़ से ये रीजन बना हुआ है. दैट such a conversation does not exist or is even being contemplated is one more example of rejection of the idea of South Asia that continues to bedevil a region refusing to see itself as one geographical unit. अब ये ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही है. जो इस रिपोर्ट में प्रपोज किया है कि इन बड़ी कंट्रीज़ को बैठ के विचार करना चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी कोई आइडिया है ही नहीं. ठीक है. और ये दिखाता है कि कैसे हमने साउथ एशिया को एक
बिल्कुल नेग्लेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली लॉजिकल व्हेन यू कंसिडर दैट ऑल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क नेशंस आर मेंबर ऑफ ग्रुप 77 developing countries which under the chairmanship of Pakistan last year negotiated a breakthrough at COP27 climate change summit at Sharm el Sheikh but are unable to convene a climate change conference for themselves. और ये हैरानियत की बात है, ऑथर बोल रहे हैं ये हैरानियत की बात है कि ये सारी जो सार्क नेशंस है जिनको ये डिस्कशन करनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ ग्रुप 77 है जो डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है। और लास्ट ईयर COP27 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान की लीडरशिप के अंडर हुआ था शर्म एल शेख में, उन्होंने वहाँ पे कलेक्टिवली अपने गोल्स को डिसाइड किया है पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये बड़ी हैरानियत की बात है कि ये वहाँ पे कर सकते हैं पर ये आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते, है ना। नाउ टेररिज्म स्पेशली अराइजिंग फ्रॉम तालिबान ओवर दी अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ओ छूट गया थोड़ा। क्लाइमेट क्राइसिस यूक्रेन इशू। द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट one of the immediate challenge of the times where South Asia has failed but to build a platform। हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज में फेल नहीं हुए हैं, हम एक प्लेटफॉर्म बनाने पे भी फेल हुए हैं जहाँ पे इस बारे में डिस्कशन हो सकता है। इन फैक्ट while India and Pakistan, the chief opponents of an integrated South Asia, continues to point to past disputes as a reason to hold up South Asian summits such as SARC, block trade, connectivity, and other avenues for cooperation. The undeniable truth is that every immediate geopolitical challenge is pushing the region to work more closely together. अब ऑथर बोल रहे हैं कि एक तो हम क्लाइमेट चेंज में असफल हुए, एक प्लेटफॉर्म बनाने में असफल हुए, और दो जो रोड ब्लॉक्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया है, ये सबसे बड़े मतलब इनके जो डिफरेंसेस है वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है एक साउथ एशिया रीजन की प्लेटफॉर्म बनाने में और एक पॉलिसी डिवाइस करने में। ये दोनों मतलब स्पेशली पाकिस्तान जो पीछे के फेलियर्स हैं, जो पीछे के डिस्प्यूट्स हैं, उनको बार बार सामने लाता रहता है और उसी वजह से प्रोमिनेंटली सार्क, ब्लॉक ट्रेड, ये सारी जो मीटिंग्स है ये नहीं हो पाती हैं। पर जो सारे चैलेंजेस साउथ एशिया फेस कर रहा है वो फोर्स कर रहा है हमको कि एक हमें साथ में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रॉम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस दैट सॉ पाकिस्तान, मतलब अब चैलेंजेस बता रहे हैं ऑथर कि क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हमें रिसेंटली। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस दैट सॉ पाकिस्तान बीइंग एनगल्फ्ड इन फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में। द यूक्रेनियन वॉर दैट सेंट कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एनर्जी, ग्रेन, फर्टिलाइजर्स ऑल सोरिंग। जो यूक्रेन का वॉर था उसकी वजह से सारे एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा सोर हो चुके हैं। प्रसिस्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। मोर वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस है ना, इसकी वजह से जो भी आ रहा है, फेस कर रहे हैं हम इकोनॉमिक रिसेशन। देन टेररिज्म स्पेशली अराइजिंग फ्रॉम तालिबान। तो ये सारे चैलेंजेस जो है ना ये साउथ एशिया कलेक्टिवली इनको फेस कर रहा है और उसका सॉल्यूशन भी कलेक्टिवली ही आएगा। द फेलियर टू बिल्ड अ रीजनल डिफेंस to the issues arising from Russia's invasion of Ukraine and from NATO, North Atlantic Treaty Organization sanctions, trade bans, and weapon stockpiling means that South Asia has missed the chance to position itself as energy cartel commanding a better price for the region। अब ऑथर बोल रहे हैं कि हमारा जो फेलियर था एक रीजनल डिफेंस ना बनाने में, ठीक है, फॉर्म जिसमें मतलब हम डिफेंस कर सकते थे रशिया लाइक इन्वेजन या फिर नेटो का या फिर ट्रेड बैन या वेपन स्टॉक पाइलिंग, तो इसमें हमने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है जहाँ पे साउथ एशिया जो है ना वो एनर्जी रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता था प्रोवाइडर, एज अ प्रोवाइडर। अभी हम इम्पोर्ट करते हैं बट वी कुड हैव बीन दी एक्सपोर्टर, ठीक है। Apart from crude dependency, Bangladesh, Pakistan, and India buy more than 50% of their liquefied natural gas through the spot market, an indicator of how vulnerable they are to global energy trends। तो ये बहुत हैरानियत की बात है कि हम जो है हम क्रूड ऑयल तो मंगाते हैं 50% LPG भी हम मंगाते हैं जो हमें और वल्नरेबल बना देता है ग्लोबल चैलेंजेस के प्रति, ठीक है। रीजनल फिशर्स, अब रीजनल में क्या डिस्प्यूट्स हैं। पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज टू टॉक विद इंडिया टू इट्स ओन डिट्रीमेंट। पाकिस्तान ने इंडिया से बात करने को मना कर दिया अपनी उस पर बर्बादी के लिए, डिट्रीमेंट खुद की बर्बादी, ठीक है। नाउ
and now stands to miss out on being the part of South Asia energy grid that is already powering the dreams of regional connectivity between Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, BBIN grouping and possibly Sri Lanka. अब जो पाकिस्तान ने खुद ही डेट्रीमेंटल उसके लिए हो गया है, ठीक है, तो उसने ऑलरेडी जो बस है वो मिस कर दी है फॉर साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड जो BBIN प्रपोज करता है. BBIN इन कंट्रीज़ के बीच में एक एनर्जी कोऑपरेशन है जिसमें मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स, व्हीकल्स एंड फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी ये प्रपोज किया जाता है. Phrases such as Vasudev Kutumbakam and diplomacy and dialogue as being the only way to resolve the conflict sounds hollow when compared to India and Pakistan's act of holding up SAARC summit for meeting for nearly a decade. अब जो हमारे स्लोगन्स है वासुदेव कुटुम्बकम, होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली एंड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये सारे जो डायलॉग्स हैं ये ना एम्प्टी साउंड करते हैं जब हम मतलब ये रोड ब्लॉक देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंसेस जिसने सार्क की मीटिंग को 10 साल यानी एक डिकेड से हम नहीं मिले हैं सार्क की मीटिंग में. ओके, सो दैट ऑलमोस्ट ओके, तो ये शो करता है कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस ये अपने बीच में ला रहे हैं जिससे फर्दर ये आगे सोच ही नहीं पा रहे अपने डिफरेंसेस से आगे. Furthermore, if New Delhi can virtually hold a special meeting for Global South with the impact of Ukraine war on the agenda, there is no reason why it cannot convene on or participate in a regional dialogue to discuss the issue or even to include the regional agenda in its G20 narrative. और ऑथर बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान एक स्पेशल मीटिंग ग्लोबल साउथ की करवा सकता है जो अभी करवाई थी, ठीक है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया पे और साउथ एशिया पे इम्पैक्ट डिस्कस किया था यूक्रेन वॉर का, तो जब भारत ये करवा सकता है तो एक रीजनल मीटिंग भी भारत करवा सकता है जिसमें एजेंडा या फिर वो जो ये हमारे रीजनल चैलेंजेस के एजेंडा हैं ये G20 नैरेटिव में भी इंक्लूड कर सकता है जिसकी अभी चेयरमैनशिप है इंडिया के पास. सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजनल कोऑपरेशन इन हेल्थ सिक्योरिटी आर बीइंग मिस्ड. ऐसी सिमिलर कोऑपरेशन जो हेल्थ में हो सकती थी इस रीजन में वो भी मिस हो चुकी हैं. ऑल्दो इंडिया हैज़ वर्क बायलेटरली with most of its neighbors to provide vaccines and COVID-19 medicine. ऑल्दो इंडिया ने एफर्ट किया है और रीजनली नहीं पर बायलेटरली हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट किया है, हमने वैक्सीन्स भेजी हैं कोविड की, ठीक है. अनदर मूव मे बी टू यूनिलेटरली एक्सटेंड कॉपीराइट वेवर ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स within South Asia of the sorts India has proposed unsuccessfully thus far at WTO, World Trade Organization. और इसमें और क्या हो सकता है कि हम खुद से जो ट्रेडमार्क हैं, जो कॉपीराइट्स हैं वैक्सीन पे, वो वेव कर दें ताकि और लोगों को इसको बनाने में, वैक्सीन बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आए. ये इंडिया ने प्रपोज किया था पर WTO ने रिजेक्ट कर दिया. When it comes to terrorism, the contradiction between what can be discussed at the broader multilateral but not in the region are manifold. मतलब जब टेररिज्म के बारे में बात आती है तो देर इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन कि क्या क्या मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस हो सकता है बट रीजनल पे नहीं हो सकता, ठीक है. इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्स अबाउट टेररिज्म एट द यूनाइटेड नेशन एंड शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बट विल नॉट डिस्कस द इशू बायलैटरली और विद इन साउथ एशिया. इंडिया और पाकिस्तान टेररिज्म के बारे में बात करेंगे जाके UN में, यूनाइटेड नेशन में या SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना का है, ठीक है, वहाँ पे टेररिज्म की बात करेंगे पर आपस में नहीं कर पाएंगे, है ना. तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है. इन 2022 न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद एक्सचेंज टीम एज अ पार्ट ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर and India was part of Financial Action Task Force grouping that led Pakistan off its terror financing grey list. But the two sides are still not able to find a way for talks on subjects between them. जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान थे वो रैट्स का पार्ट थे जो ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है SCO का, और इंडिया पार्ट था FATF का जिस बारी में उन्होंने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटाया है. अब FATF क्या है, ये टेरर फंडिंग पे रोक लगाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है. FATF जो कंट्रीज़ टेरर फाइनेंसिंग करती है उनको लिस्ट्स में डालती है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, ठीक है. ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आते हैं इनको काफ़ी सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे उन टेररिस्ट को पकड़ो, टेरर फाइनेंसिंग रोको. तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम तक ग्रे लिस्ट में था पर अब वो वहाँ से रिमूव हो चुका है. द रीसेंट स्लैंगिंग मैच बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
S. Jaishankar, and Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari in New York is a sample of only engagement that exists. There are other absurdities. अब जो इनका स्लैंग एक दूसरे को ये करते रहते हैं, मतलब ताने मारना बेसिकली, वो ऑथर बोल रहे हैं कि सिर्फ यही एक सैम्पल ऑफ एंगेजमेंट बचा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में, और बहुत सारी एब्सर्डिटी है. पाकिस्तान हैज़ मेड कश्मीर इट्स स्टिकिंग पॉइंट. पाकिस्तान ने कश्मीर को ना एक स्टिकिंग पॉइंट बना दिया है, एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बना दिया है. ठीक है, कि हम कोई भी बात करेंगे ही नहीं जब तक कश्मीर की बात नहीं होगी. इंडिया बोलता है कि कश्मीर, अगर तुम्हें और चीज़ों में बात करनी है, बायलैटरल टॉक्स करनी है, कर सकते हैं, बट कश्मीर को टॉपिक नहीं उठाएंगे. ठीक है, क्योंकि इंडिया की नज़रों में वो टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो हमारा ऑल टुगेदर राइट है उस चीज़ पे. ठीक है, तो पर पाकिस्तान बोलता है हम कोई और बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर के बारे में बात ना हो, इंक्लूडिंग ओपनिंग ट्रेड विद इंडिया, बट अलाउज ट्रांजिट फ्रॉम इंडिया वीट टू अफगानिस्तान. पाकिस्तान खुद बात नहीं करना चाहता, पर वो इंडिया से जो ट्रांजिट, मतलब इंडिया की जो वीट जाती है अफगानिस्तान, उसको उसने अलाउ किया. इंडिया विल नॉट होल्ड टॉक्स विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स सपोर्ट फॉर टेररिस्ट. इंडिया बात नहीं करेगा पाकिस्तान में क्योंकि इंडिया को लगता है पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है. बट नाउ हैज़ अ डायलॉग ओपन विद द यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट देमसेल्व्स. बट इंडिया ने खुद से यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट से बात करनी शुरू कर दिया. मतलब ऑथर इज ट्राइंग टू शो द डिक्टोमी, कितनी अब्सर्डिटी है दोनों के रिलेशंस में, कि खुद इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, पर खुद से उन्होंने जो यूएन का डिक्लेयर टेररिस्ट था उससे बात शुरू कर दी. ठीक है, तालिबान लीडर इंक्लूडिंग सिराजुद्दीन हकानी held responsible for the attacks on Indian mission where Indian diplomat and several security personnel died. ये जो बंदा है ये रिस्पॉन्सिबल था अटैक पे इंडियन एम्बेसी पे. तो अभी ऑल्दो ये तालिबान में है, बट वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस पर्सन. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ सच rank lack of logical behavior, any chance of coordinating or cooperating against the developing chaos in Afghanistan and countering extra regional terror threats are also lost for South Asia, the one region affected the most. Now author is saying कि such lack of logical behavior, ऐसा illogical behavior की वजह से क्या हो रहा है कि कोई कोऑर्डिनेशन का चांस ही मिस हो गया है अगेंस्ट द टेरर, राइज ऑफ टेरर इन अफगानिस्तान, या फिर कोई और टेरर अटैक फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कंफर्ट इन रीजनलिज्म. अब ये थोड़ा बात करेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है. गिवन द डीपनिंग पोलराइजेशन इन द वर्ल्ड, पोलराइज हो रहा है दुनिया, चीज़ों पे डिवाइड हो रही है, यूनाइट नहीं हो रही और डिवाइड हो रही है. क्लाइमेट केओस है ना, क्लाइमेट चेंज के हम देख रहे हैं कैसा बुरी तरह उसका डिवॉस्टेशन हो रहा है. एंड द ग्रोइंग स्केरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्केरिसिटी हो रही है. इट इज़ क्लियर टू सी दैट अंडरपिनिंग्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर द पास्ट सेंचुरीज आर अबाउट टू बी अपेंडेड. जो ग्लोबलाइजेशन के अच्छे साल थे ना, वो अब ख़त्म होने वाले हैं. एंड नियरली एवरी अदर नेशन इज़ फाइंडिंग इट्स मूरिंग इन द रीजनलिज्म एंड फोरम्स क्लोजर होम. और मोस्टली सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी मूरिंग्स, मतलब अपनी वो जो होती नहीं सिक्योरिटी या अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस, वो उनको रीजनल एरियाज़ में मिल रहा है, अपने क्लोजर टू होम मिल रहा है. ठीक है, रीजनल ट्रेड now makes up for more than half of the global trading and agreements such as United Nation Mexico Canada agreement. जो रीजनल ट्रेड है अब वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है रादर देन मल्टीलेटरल ट्रेड. जैसे यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, USMCA, सदर्न कॉमन मार्केट, मर्कसर फॉर स्पेनिश इनिशियल, मर्कसर साउथ अमेरिका में है, द यूरोपियन यूनियन, द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, RCEP. तो ये सारे ना रीजनल ग्रुपिंग्स है ना. तो ऑथर बोल रहे हैं कि इन रीजनल ग्रुपिंग्स का अब ज़्यादा रेलेवेंस है और इनसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कंट्रीज़ को, आर फर्दर बूस्टिंग दिस ट्रेंड. हाउएवर साउथ एशिया डिफाइंड बाय द हिमालयाज एंड हिंदू कुश टू द नॉर्थ and Indian Ocean to the south, an area distinctively different from West Asia, Southeast Asia on either side is the exception, the outlier to this most logical principle. अब अगेन वो ड्रॉ कर रही हैं कंपैरिजन कि देखो ये सारे जो रीजनल ग्रुपिंग है ये बेहतर कर रहे हैं,
पर हमारा रीजन साउथ एशिया जो हिंदू कुश माउंटेन से इंडियन ओशन तक है, ठीक है, अ डिस्टिंक्टिव रीजन, ठीक है, ये इस मेथड को नहीं अपना रहा है, ये रीजनल कोऑपरेशन नहीं कर पा रहा है. सम ऑप्शन स्टिल एग्जिस्ट, कुछ ऑप्शन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर साउथ एशिया कोऑपरेशन. जस्ट एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डीलिंक्ड हिमसेल्फ फ्रॉम नॉन अलाइंड मीट summit since 2014, but with the government seen asserting its belief in non-alignment, it should be possible to delink Mr. Modi's presence from SAARC summit due to be held next in Pakistan. अब ऑथर बोल रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद को हटा लिया ना, खुद को लिंक से दूर कर दिया नाम समिट से, बट विद द गवर्नमेंट सीन असर्टिंग इट्स बिलीव इन नॉन अलाइनमेंट. बट अब जब गवर्नमेंट दोबारा नॉन अलाइनमेंट के बिलीव्स को रीअसर्ट करती है, इट शुड बी पॉसिबल टू डीलिंक मिस्टर मोदीज प्रेजेंस फ्रॉम सार्क समिट ड्यू टू, मतलब जो सार्क समिट नेक्स्ट पाकिस्तान में हेल्ड होने वाली है उससे भी वो खुद को डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है. एंड इंस्टेड हैव अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया. और मतलब मोदी जी की जगह कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वहाँ जा सकते हैं. अ क्विड प्रो को could even see Pakistan send a replacement for its prime minister to SCO heads of state summit due to be held in India in June. ऐसे सिमिलरली अगर इंडिया अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट भेजेगा सार्क मीटिंग में, तो पाकिस्तान भी अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे SCO मीटिंग में. इन एनी केस इट इज़ नेसेसरी फॉर फ्यूचर टू डीलिंक साउथ एशिया कोऑपरेशन फ्रॉम समिट itself and allow other parts of the agenda, health, energy, women right, security, terrorism to be held even if the leadership event is not. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है डीलिंग कर दो, आपको अपनी पॉलिटिक्स डीलिंग करनी है अगर, तो वो आप कर सकते हैं, पर जो मेजर इश्यूज हैं हेल्थ, एनर्जी, वुमेन राइट, सिक्योरिटी, इनको रिजेक्ट करना सही नहीं होगा. To reject this idea would mean a missed opportunity with the repercussion more dire than those that come from the poisoned air in the region breathes today. See how she has connected कि इनको इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना, इन चीज़ों पर बात ना करना, एक उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. जस्ट लाइक द ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लम, जो एयर से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वैसी प्रॉब्लम इसकी वजह से फेस करेंगे अगर हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तो. ओके, आई होप दिस डिस्कशन हेल्प्ड यू. थैंक यू सो मच.